গোমতী জেলা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমার সাথে দেখা করতে গেলে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সাথে জেলা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমা সাক্ষাতে অস্বীকৃত হন। এই ঘটনা নিয়ে প্রচুর হইচই শুরু হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রদ্যুৎ কিশোরের এবং মথার কর্মী নেতৃত্ব, যার কারণে প্রদ্যুৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তড়িৎ চাকমার সমালোচনা করে বিভিন্ন ধরনের কমেন্টস আসছে। ধর্ম এবং জাতিগতভাবেও আক্রমণ করা হচ্ছে তড়িৎ চাকমাকে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচরণ কোন সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে না বলে দাবি করে এই ধরনের জাতি, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা বন্ধ করার দাবি তুললেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। রবিবার প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সন্ধ্যের পর গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমার সাথে দেখা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। গোমতী জেলা শাসক প্রদ্যুৎ কিশোরের সাথে দেখা করতে চাননি। জেলা শাসকের এই আচরণে ক্ষুব্ধ প্রদ্যুৎ কিশোর। এই বিষয়ে বিক্ষুব্ধ মথার অন্যান্য নেতৃত্ব। এমতাবস্থায় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সামাজিক মাধ্যমে গোমতী জেলা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমাকে সমালোচনা করে বিভিন্ন ধরনের কমেন্টস আসছে। এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। তিনি এদিন নিজের সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, যেভাবে চাকমা সম্প্রদায়ের লোক বলে জেলা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমাকে উদ্দেশ্য করে জাতি, ধর্ম, জাত, পাত মানসিকতা নিয়ে কটূক্তি করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। কোনো সম্প্রদায়ের কেউ ব্যক্তিগতভাবে যে আচরণ করে সেটা কখনোই তার জাতি, ধর্মের উপর ভিত্তি করা হয় না। জেলা শাসক অন্যায় করেছেন বলে চাকমা সম্প্রদায়ের সবাই অপরাধী, সেটা হতে পারে না। যেভাবে চাকমা সম্প্রদায়কে একজন ব্যক্তির জন্য গোটা জাতিকে আক্রমণ করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। কারণ তিপ্রাসাদের মধ্যে ইউনিটি রাখাটা জরুরি। চাকমারা যখনই বিপন্ন হয়েছে সে সময় তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে তিপ্রাসারা। এমনকি বাংলাদেশের যখন চাকমাদের উপর আক্রমণ নেমে এসেছে তখনও তারা তিপ্রাসা সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে তিপ্রা মথা। কিন্তু সে সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ব্যবহার এবং আচরণ কখনোই সেই সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হতে পারে না। তাই চাকমা সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে যে সমস্ত কটূক্তি হচ্ছে তা বন্ধ করার দাবি রাখলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। পাশাপাশি তিনি বলেন, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বহুদিন আগেই লড়াই শুরু করেছে মথা। এনআরসি ইস্যুতে রাজ্যে প্রতিবাদী হয়েছে মথা। আইনি লড়াই এখনো জারি রয়েছে। এতে তিপ্রাসা সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত এবং তাদেরকে ভারত থেকে বার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে মথা অনেক আগেই সরব হয়েছিল। এই বিষয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর আরো বললেন, অনুপ্রবেশকারীরা দেশের ক্ষতি করেছে। তারা এই রাজ্যে এসে রেশন কার্ড ও ভোটার কার্ড সরবরাহ করে দিচ্ছে। এই ধারা চলতে থাকলে একসময় তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব ক্ষেত্রে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেবে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, কে পার্লামেন্টের মেম্বার হবেন, মন্ত্রী হবেন, তারাই ঠিক করবে। রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হবে তারা ঠিক করবে। এই বিষয়গুলি এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। তাই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে মথার কর্মী সহ প্রত্যেক মানুষকে সচেতন হতে হবে। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি তারা যাতে এদেশে থাকার বৈধ নথিপত্র জোগাড় না করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনের জেলা শাসক থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক, ভিডিও পঞ্চায়েত সব জায়গাতেও গিয়ে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খোঁজখবর নিতে হবে। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহজনক ব্যক্তিদের রাজ্যে বসবাস বন্ধ করতে উদ্যোগ নিতে হবে প্রত্যেককেই। কারা অবৈধভাবে নথিপত্র বার করার চেষ্টা করছে, ভোটার কার্ড বার করার চেষ্টা করছে, তাদের অবশ্যই চিহ্নিত করা জরুরি। কারণ একবার তারা অবৈধ পথে দেশের বৈধ নাগরিকত্ব হয়ে গেলে তারা দেশ এবং রাজ্যের প্রকৃত নাগরিকদের এবং ভূমিপুত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলতে শুরু করবে। সেটা কখনোই হতে দেওয়া উচিত নয়। कम ऑन लाइव ऑन फेसबुक आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलने के लिए। कल रात जो गोमती में हुआ डीएम के वहाँ में, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ में बहुत लोगों ने मैंने फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट देखा है कि आप लोग नो डाउट आप लोग के अंदर थोड़ा गुस्सा हो सकता है कि डीएम ने ठीक तरीके से बात नहीं किया, मिला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत लोगों ने चाकमा कम्युनिटी के ऊपर आप लोग ने कुछ बात बोला है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक आदमी का एक्शन पूरा कम्युनिटी का के संग जोड़ना गलत बात होगा। वो डीएम बंगाली भी हो सकता था, तिप्रासा भी हो सकता था, देबबर्मा, जमातिया, रांखोल भी हो सकता था, मुस्लिम भी हो सकता था, क्रिश्चियन भी हो सकता था, बुद्धिस्ट भी हो सकता था। ये उनका पर्सनल एक्शन था। प्लीज डू नॉट टारगेट अ कम्युनिटी। आज के दिन जब हमें एक होना है और हमें आगे बढ़ना है, आई थिंक दैट किसी को कि कोई जात को या कोई रिलीजन को ब्लेम करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इज नॉट गुड फॉर अस। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि आदमी का जो कम्युनिटी है या उनका धर्म है उसको आप टारगेट मत कीजिए। वो एक व्यक्ति का एक्शन था
और उसको हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। मेरे संग मेरे बहुत चाकमास हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मैंने भी उनको सपोर्ट किया है। जब उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली में हुआ, जब भी कुछ गलत होता है तो मैं बांग्लादेश में जब हमारे लोगों को मारा जाता है तो मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। तो एक आदमी का एक्शन पूरा कम्युनिटी को टार्निश नहीं करना चाहिए, और मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ कि काइंडली डू नॉट अटैक द होल कम्युनिटी फॉर वन मिस्टेक ऑफ वन पर्सन। ये मेरा थिंकिंग है। आपको अगर लगता है कि मैं ये बोल के कमजोरी दिखा रहा हूँ, कमजोरी नहीं दिखा रहा हूँ। महाराजा का परिवार से हूँ, दिल बड़ा होना चाहिए और सोच भी बड़ा होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपने सुना है कि होम मिनिस्टर ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात तो मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। एनआरसी का केस भी फाइल किया था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। एनआरसी के केस में मैं था, बीके रांखोल था, जगदीश देव वर्मा था, रंजीत देव वर्मा था। हम लोग सब का जो पोजीशन वो टाइम था और आज का पोजीशन है वही है। लेकिन क्योंकि आज बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बोल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्ट कर रही है। लेकिन तिपरासा ये बात पहले से जान चुका था, है और रहेगा। इसके लिए आई आस्क ऑल माई एमएलएस, मैं आज अपने एमएलएस के संग ही बैठा हूँ, यहाँ भी बैठा है, रंजीत बैठा है, पाथान बैठा है, फिलिप है यहाँ में, हे फिलिप, यहाँ में गणेश है, हमारा वाईटी लोग सब लोग है, राजेश्वर देव वर्मा। मैं आप सबको बोलता हूँ कि अपने एरिया में जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि आज सिर्फ रोहिंग्याज या बांग्लादेशीज नहीं आ रहे हैं। आज ये लोग त्रिपुरा में आकर वोटर का आईडी ले रहे हैं, राशन कार्ड ले रहे हैं, और 2028 के इलेक्शन में ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा एमएलए बनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा कौन हमारा एमपी बनेगा, ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमको होने नहीं देना है। तो मैं आप सबको बोलता हूं, अपने एमएलएस को मैंने बोला है कि अपने एरिया में डीएम के संग बात करके, एसडीएम बीडीओ के संग बात करके जानकारी लीजिए कि कौन इलीगली राशन कार्ड ले रहा है, कौन इलीगली हमारे एरिया में बैठ रहा है, और कौन इलीगली इंडिया का वोटर बनने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस दिन वो वोटर बन जाएगा, उस दिन वो हमारे भविष्य के संग खेलेगा, आपके बच्चे के भविष्य के साथ खेलेगा। इसके लिए दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट, दिस इज द टाइम टू यूनाइट, टू स्टॉप ऑल दीज इलीगल पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। इनको तो हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जब ये लोग आते हैं तो ये आपका बच्चे का नौकरी ले जाता है, ये आपका हिस्से का अधिकार छीन लेता है। तो ये हमारे सब हिंदुस्तानी, इंडियन के, भारत के हित में है कि हम इनको रोकें। सो मैं आप सबको यही विनती करना चाहता हूं, माई एमएलएस, माई एमडीसीज, माई ईएम्स, माई एडमिनिस्ट्रेशन, माई वॉरियर्स ऑफ तिपरा मोथा ये एक्सरसाइज करेगा। आप भी इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। घर को जलाना बहुत आसान है, लेकिन घर को बचाना जलाने से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमको त्रिपुरा को बचाना है, और हमको इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको हिंदुस्तान में वोटिंग राइट से और राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलने से हमको रोकना है। और उसके लिए वी हैव टू बी वन, द पीपल ऑफ त्रिपुरा। इवन इफ यू आर अ बंगाली, यू आर अ तिपरासा, यू आर अ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, वी ऑल हैव टू बी वन। जेन्युइन इंडियंस को अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए, हानि बुसा को अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर के आदमी को हम लोग देखेंगे। ये मेरा मैसेज आप सबको है। बेलाइनो हामबाई खुलुंखा, थैंक यू। নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।